Hello dear students, this is Neetu ma'am from Defence Services Academy. Once again, I welcome you all on the educational platform online education system of DSA. I hope you are watching all the videos of English and I hope you are studying well in English. Now, let's talk about some of the syllabus. Now, syllabus हम लोग ने now start किया है. Still, I am telling you one thing, I have started the syllabus of NDA. As our focus is to crack NDA, but still अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ और टॉपिक भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए तो फील फ्री टू सेंड मी द मैसेज. आई कैन स्टार्ट द टॉपिक एज पर योर विश. इफ यू वांट मी टू स्टार्ट एक्टिव पैसिव वॉइस, इफ यू वांट मी टू स्टार्ट टेंसेस, इफ यू वांट मी टू स्टार्ट स्पीच और क्वेश्चन टैग्स, as per your choice I'll connect the topic because the main thing you must understand the link. तो आप लोग को अगर ऐसा लग रहा है कि आफ्टर नाउन आई मस्ट स्टार्ट सम अदर टॉपिक, आई स्टार्ट दैट टॉपिक ऑल्सो, बट द डील इज दैट कि पढ़ाई करनी है. तो वी आर डूइंग द कंफ्यूजिंग नाउन सेगमेंट. आई होप आपका कंफ्यूजन क्लियर हो रहा होगा नाउन और नाउन के सिंगुलर प्लूरल से लेकर. नाउ आई एम हियर अगेन विद सम ऑफ द कंफ्यूजिंग नाउन्स. इन कंफ्यूजिंग नाउन्स को यहाँ खत्म करके आफ्टर दिस we'll start the rules. We'll continue with the rules. Remember we were doing the rules to spot the errors of noun. We'll continue with that, but usse pehle just the last segment of confusing nouns. Let's start. So students, I start the confusing noun segment once again. Now the first word which you are able to see on the board is manner. Manner क्या? आपने कभी manner word use किया है? Manner means तरीका, way. Do this in this manner. Just write this in proper manner. Behave in a proper manner. Manner means तरीका. अब manner means तरीका, तो manners means तरीके नहीं. Manners means etiquettes. आपका behavior, good manners, bad manners. तो manners means etiquette. Table manners. Table manners क्या? Table पे बैठने के manners? No. Table manners means how to eat, how to use the fork and the spoon, how to behave on the table, how to behave while eating. तो ये सारे जो manners हैं ये सब table manners में आते हैं. तो when you will come here, I'll teach you table manners also, how to eat, how to drink, किस हाथ में knife, किस हाथ में spoon, पानी ग्लास से कैसे पीना है, गड़ 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 करके एक साथ नहीं पी जाना, खाते समय आवाज नहीं करना. All this is included in table manners. तो manners means etiquettes. Etiquettes means आपके behave कैसे करना है, behavior. Now दोनों में फर्क है. Now see the sentence based on this. He behaves in a funny manner. अब यहाँ पे manners नहीं आएगा. Mind this. Error ऐसे ही आता है sentence में बेटा. अगर यहाँ manners आ रहा है तो आपको लग रहा है कि हाँ उसका manners नहीं है. But नहीं, यहाँ पर बात किसकी हो रही है? Manner means तरीका, means way. तो अगर मैं यहाँ इसके बदले way लिख रही हूँ तो भी sentence correct है. पढ़ के देखो, he behaves in a funny way. Way मतलब तरीका, वो बहुत funny तरीके से behave करता है. Okay, तो manner means तरीका. Now comes the manners. Manners means etiquettes, moral behavior. He has no manners. No manners मतलब उसमें तरीका नहीं है. किस चीज का? तो manners means etiquettes for behavior. तो he has no manners. That means he has no etiquettes. अब etiquettes related होते हैं आपके behavior से. यहाँ he has no manners मतलब उसको behave करने का तरीका नहीं है. तो manners means etiquettes. Manner means तरीका. Write it in a proper way. Proper manners नहीं तो proper manner. Write it in a proper way. Write it in a proper manner. Walk in a proper manner. सही तरीके से चलो. But manners just behave in proper thing. That means with etiquettes. Okay. Now next is quarter and quarters. What do you mean by this? Quarter means 1/4 of an hour. एक घंटे के एक चौथाई भाग को हम quarter कहते हैं. That means 1/4. Okay. Quarter आपको basically ज्योमेट्री में भी पढ़ता है 1/4. तो quarter यहाँ यूज हो रहा है 1/4 part of anything और यहाँ पर 1/4 an hour. That means 15 minutes. 15 मिनट का जो टाइम है वो पूरे एक घंटे का 1/4 पार्ट है. टोटल 60 मिनट्स होते हैं. तो 15 मिनट्स के जो पार्ट को वी यूज क्वार्टर फॉर दैट. ओके, क्वार्टर ऑफ द केक.
अब केक का क्वार्टर मीन्स 1/4 पार्ट, क्वार्टर ऑफ द होल थिंग, पूरी चीज का क्वार्टर पार्ट, तो क्वार्टर पार्ट मीन्स 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा। अब 1 घंटे का 1/4 हिस्सा 15 मिनट। ओके, ना क्वार्टर्स, तो ये 15 मिनट, तो ये 15 मिनट का प्लूरल। दिस क्वार्टर्स मीन्स प्लेस ऑफ एकोमोडेशन। नाउ व्हाट इज एकोमोडेशन? एकोमोडेशन मीन्स रहने की जगह, जहां पर आप रहते हो। ओके, वहां एक ग्रुप बना दिया गया, एक स्लॉट बना दिया गया, एक प्रॉपर जगह बना दी गई जहां पे एक ग्रुप रह रहा है, उसको हम क्वार्टर्स कहते हैं। सर्वेंट क्वार्टर्स, यू मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड, सर्वेंट क्वार्टर्स, पुलिस क्वार्टर्स, ऑफिसर्स क्वार्टर्स। तो ऑफिसर्स क्वार्टर्स, सर्वेंट क्वार्टर्स मीन्स क्या? सर्वेंट क्वार्टर्स मीन्स सर्वेंट के रहने की जगह, पुलिस क्वार्टर्स मीन्स पुलिस की फैमिलीज के रहने की जगह, मिलिट्री क्वार्टर्स दैट मीन्स जहां मिलिट्री ठहरी हुई है। तो क्वार्टर्स मीन्स प्लेस ऑफ एकोमोडेशन, एकोमोडेशन मीन्स रहने की जगह। नाउ डिफरेंस बिटवीन द टू, क्वार्टर मीन्स 1/4 पार्ट, किसी भी चीज का 1/4 पार्ट, 1/4 हिस्सा। अब टाइम की अगर बात करें तो 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो क्वार्टर मीन्स 15 मिनट्स, तो क्वार्टर ऑफ एन आवर मीन्स 15 मिनट को हम क्वार्टर बोलते हैं। नाउ चेक आउट दिस इन द सेंटेंस, he will reach here in a quarter of an hour। अब in a quarter of an hour मीनिंग यहाँ पर, तो whenever you have to use the word 15 minutes कि मैं 15 मिनट में आ रहा हूं, तो now in a new style quarter of an hour। अगर आप अभी तक बोल रहे होगे I will reach there in 15 minutes, तो आप क्या बोलोगे अब? I will reach there in quarter of an hour, that means 15 मिनट। He will be late with quarter of an hour, that means वो 15 मिनट से लेट हो जाएगा, तो quarter of an hour means 15 minutes। Now see the usage of quarters in the sentence। The soldiers moved to their quarters। Soldiers अपने अपने quarters की तरफ चले गए। What do you mean by quarters here? रहने की जगह। Now see, these are police quarters। पुलिस क्वार्टर्स दैट मीन्स ये पुलिस के रहने की जगह है। इससे एक और मिलता जुलता वर्ड हेड क्वार्टर। हेड क्वार्टर सुना है? हेड क्वार्टर मीन्स हेड रूम। हेड सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो काम वहां हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है वो वहां रह रहा है। पुलिस हेड क्वार्टर्स मीन्स पुलिस के हेड की जो वहां काम होता है वो हेड क्वार्टर्स में होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लेटर और लेटर्स। अब लेटर का मीनिंग होता है चिट्ठी, पत्र, टेलीग्राम। दिस कैन बी यूज्ड इन सिंगुलर आल्सो in the sense of चिट्ठी and in the plural also चिट्ठियां। लेटर अगर टेलीग्राम के फॉर्म में यूज हो रहा है तो वो सिंगुलर भी बनता है, प्लूरल भी बनता है, बट ये लेटर्स इसका प्लूरल नहीं है। ये लेटर्स मीन्स नॉलेज, समझदार। अब इन दोनों का डिफरेंस क्लियर करने के लिए लेट्स चेक आउट द एग्जाम्पल। आई रोट अ लेटर टू माई फ्रेंड। मैंने अपने फ्रेंड को एक चिट्ठी लिखी, इसका प्लूरल भी बना सकते हैं। ही रोट मेनी लेटर्स टू हिज डैड। उसने अपने डैड को बहुत सारी चिट्ठियां लिखी। तो लेटर और लेटर्स चिट्ठी के सेंस में सिंगुलर और प्लूरल दोनों में फॉर्म यूज होगा, बट लेटर्स अगर नॉलेज के सेंस में यूज हो रहा है तो इसका सिंगुलर नहीं बनेगा। सीधा सेंटेंस, मिस्टर गुप्ता इज अ मैन ऑफ लेटर्स, मीन्स वो बहुत समझदार व्यक्ति हैं। मैन ऑफ लेटर्स मीन्स उनको बहुत नॉलेज है। तो यू कैन यूज दिस वर्ड इन योर लैंग्वेज कि मैन ऑफ लेटर्स और पर्सन ऑफ लेटर्स मीन्स जिसको बहुत नॉलेज है, जिसकी अपने काम के ऊपर, किसी सब्जेक्ट के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर बहुत कमांड है, तो आप उसको बोल सकते हो ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स। हम राइटर्स के लिए बोलते हैं ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स बिकॉज वो बहुत अच्छा लिख सकता है। क्यों लिख सकता है? क्योंकि उसको नॉलेज है। साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इन सब के लिए मैन ऑफ नॉलेज, दैट मीन्स उसको बहुत समझदारी है उस टॉपिक के बारे में, वो बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, दैट मीन्स ही कैन स्पीक और ही कैन राइट ऑन एनी टॉपिक, दैट मीन्स ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स। ओके, एक और इससे मिलता जुलता वर्ड है, यहाँ पे नहीं मेंशन बट आई एम टेलिंग यू, वर्ड एंड वर्ड्स। सी,
word and words. Word means letter और words means बहुत सारे शब्द, बट यहाँ word एक और सेंस में यूज होता है. He is a man of his word means वो अपनी जबान का पक्का है, शब्द का पक्का नहीं. This is an idiom. He is a man of his word means जो उसने बोल दिया वो करेगा ही. Remember सलमान खान, जो एक बार मैंने कमिटमेंट कर लिया, सेम थिंग. तो मैन ऑफ वर्ड मीन्स अपनी जबान का पक्का होना. मैन ऑफ वर्ड्स नहीं, शब्दों का पक्का नहीं होना. मैन ऑफ वर्ड मीन्स अपनी जबान का पक्का होना. तो हियर वर्ड मीन्स अपने कमिटमेंट पे रहना, अपने वर्ड पे रहना. व्हाट वर्ड यू हैव गिवन टू अदर, दैट मीन्स जो आपने किसी को प्रॉमिस किया है, जबान दी है, कमिटमेंट किया है, यू विल फुलफिल दैट. तो बी अ मैन ऑफ योर वर्ड, दैट मीन्स जो आपने बोला है उसको पूरा करना है. नाउ चेक आउट द लास्ट वन, गुड एंड गुड्स. गुड आप लोगों को पता है, गुड का ऑपोजिट बैड. गुड मीन्स अच्छा, बैड मीन्स बुरा. तो गुड का ऑपोजिट गुड्स मीन्स अच्छे? नो. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसका प्लूरल बनेगा ही नहीं. गुड इज अ क्वालिटी, तो गुड मीन्स अच्छा. नाइस. गुड्स मीन्स चीजें, इंपोर्टेड गुड्स. दीज गुड्स आर ब्रॉट फ्रॉम अमेरिका. तो गुड्स मीन्स चीजें, फॉरेन गुड्स. आप न्यूज़पेपर में, इंग्लिश न्यूज़पेपर में देखो, इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स में देखो, तो फॉरेन गुड्स यूज होता है, फॉरेन थिंग्स यूज नहीं होता. तो फॉरेन गुड्स मीन्स फॉरेन की चीजें. गुड्स मीन्स कमोडिटीज. वन अदर सिनोनिम फॉर गुड्स इज थिंग्स के अलावा, थिंग्स इज अ सिंपलर वर्जन, अपडेटेड वर्जन. गुड्स, कमोडिटीज. कमोडिटी मतलब एक चीज, कमोडिटीज बहुत सारी चीजें, पर गुड्स हमेशा प्लूरल में ही यूज होगा. तो गुड्स मीन्स चीजें. लेट्स चेक आउट द एग्जांपल. ही इज अ गुड प्लेयर मीन्स वो बहुत अच्छा प्लेयर है. ही इज अ गुड बॉय, वो बहुत अच्छा लड़का है. ही बिहेव्स वेरी नाइसली, तो ही इज अ गुड पर्सन, तो बहुत अच्छा लड़का है वो. नाउ दीज आर इंपोर्टेड गुड्स, ये चीजें इंपोर्टेड हैं. तो गुड मीन्स अच्छा, गुड्स मीन्स चीजें. Now here I complete the segment of confusing nouns and I switch to the rules for spotting the errors of noun. So students, I am going to start a very interesting topic और बहुत मजा आएगा ये पढ़ने में. और आप लोग अभी तक I don't know कि इस बारे में आप क्या जानते हैं, but now you will know all these things with the base, with the logic, with the rule. अभी तक आपको ये पता था हाँ ये चीज ऐसी होती है, but क्यों होती है, what is the logic behind that, I'll going to tell you, but just pay attention, very interesting और बहुत मजा आने वाला है इस टॉपिक में. सुनो. The following nouns are always used in their plural form. जितने भी हमने यहाँ words लिखे हैं, वो सब हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं. अब क्यों प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं? बेसिकली अगर बेसिक सा लॉजिक है तो सबके लास्ट में एस लगा है, और हमें ये पता है कि जिनके लास्ट में एस लगा होता है वो प्लूरल होते हैं. जैसे बॉय बॉयज, पेन पेन्स. बट डिफरेंस क्या है? पेन एक पेन, पेन्स एक से ज्यादा, 2 3 4. तो क्वांटिटी ज्यादा है, नंबर ज्यादा है, इसलिए वहां पेन्स लगा या प्लूरल फॉर्म लगा. बट अगर हम यहां डिस्कस करें, यहां कितनी चीजें हैं, लेट्स चेक इट आउट. सिजर्स, सिजर्स मतलब कैंची, कैंचियां नहीं. सिजर्स मतलब एक कैंची. फिर भी यहाँ एस क्यों लगा है और हम उसको प्लूरल क्यों मांग रहे हैं? सी, दे आर यूज्ड इन देयर. पहले तो लॉजिक समझो कि हम इसको प्लूरल क्यों मान रहे हैं. सिजर्स मतलब एक कैंची, एक कैंची, एक पेन सिंगुलर, बहुत सारे पेन्स प्लूरल. अगर 2 पेन भी होते तो वो क्या हो जाते? प्लूरल. बट यहां तो कैंची एक ही है, फिर भी हम उसको प्लूरल क्यों मान रहे हैं? कंफ्यूजन. नाउ टू क्लियर योर कंफ्यूजन, जब भी हम कोई ऐसी चीज लेते हैं बेटा जो 2 पार्ट से जुड़कर बनी है, सिजर्स में आप देखो देयर आर 2 ब्लेड्स, तभी तो वो कैंची बनती है. तो जब कैंची 2 ब्लेड से काट के बनी है, मींस एक से ज्यादा पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं, इसलिए उसको प्लूरल माना जाता है. फर्स्ट लॉजिक. सेकेंड लॉजिक, अगर सिजर का एक ब्लेड टूट गया तो क्या आप बाकी बचे हुए दूसरे ब्लेड से काटने का काम कर सकते हो? नो. दैट मीन्स जब तक 2 पार्ट
यूनाइट होकर एक साथ काम नहीं करेंगे, वो इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करेगा, इसीलिए उसको प्लूरल माना जाता है। तो जब भी कोई कंफ्यूजन हो कि इसमें सिंगुलर लगेगा या प्लूरल लगेगा, नो मैटर सीजर एक चीज है बट उसमें ब्लेड्स तो दो हैं, मतलब दो पार्ट बनकर एक चीज बन रही है, तो पार्ट कितने हुए? दो, तो उसको क्या माना जाएगा? प्लूरल। लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स। नाउ गॉगल्स, गॉगल्स आप लोगों को पता है, चश्मा, गॉगल्स ब्लैक, आप अलग अलग गॉगल्स यूज करते हो। अब अगर गॉगल्स, एक गॉगल है, गॉगल में लेंस कितने लगे हैं, ग्लास कितने लगे हैं? दो, 1 2, दो पार्ट से मिलकर एक गॉगल बना है, लेकिन हम उसको गॉगल नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? गॉगल्स। यही एरर आता है। अगर आपको ये बोला जाएगा he gave me 1 goggle, is this sentence correct? Check out this, he gave me 1 goggle, तो क्या वो ठीक है? No, 1 goggle नहीं होगा, goggles होगा, और 1 आएगा ही नहीं। He gave me a pair of goggles, ऐसे यूज होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, ट्राउजर्स। ट्राउजर्स मीन्स पैंट्स, शूज जूते। अब शूज, ट्राउजर, अच्छा शूज, चलो शूज का एग्जांपल लेते हैं। शूज क्यों? शूज दो जूतों से मिलकर एक जोड़ी बनी है, अ पेयर ऑफ शूज। शूज में अगर एक जूता आपका गुम गया तो क्या दूसरा जूता, आप अकेला जूता पहन के जा सकते हो? नो, इसलिए आप यही बोलोगे दीज आर माई न्यू शूज, शू नहीं। और अगर आपका एक जूता खो गया है तो क्या बोलोगे आप? वेयर इज माई 1 शू। और अगर आपके जूते नहीं मिल रहे तो वेयर आर माई शूज। तो जब भी कोई भी चीज दो चीजों से मिलकर एक बनी है और उसका यूजेज दोनों को मिला के ही होना है, तो हम उसको प्लूरल मानते हैं। लेट्स चेक आउट सम मोर एग्जांपल्स। सॉक्स, मोजे, टोंग्स, टोंग्स पता है आपको, आपके घर में चिमटा, संसी, उसको बोलते हैं टोंग्स। तो संसी का अगर एक पार्ट टूट गया सिंगल पार्ट से, कैन दैट टोंग वर्क? नो। नाउ शेड्स, व्हाट डू यू मीन बाय शेड्स? अब ये शेड्स रंगों के शेड्स नहीं, शेड्स इज अ न्यू वर्ड फॉर गॉगल्स। नाउ आज से ही गॉगल्स नहीं, गॉगल्स पुराना वर्जन, न्यू वर्जन शेड्स। आई बॉट न्यू शेड्स फॉर माई ब्रदर, दैट मीन्स मैंने आज अपने भाई के लिए नए गॉगल्स खरीदे। ओके, ना जीन्स, जीन्स आपको पता है, ट्राउजर्स आपको पता है। ट्राउजर्स, जीन्स में दो पैर डालने की जगह होती है, दोनों पैरों को जॉइंट करके एक जीन्स बनती है। तो डोंट यूज ट्राउजर, जीन, इट्स अ रॉन्ग वर्ड। हमेशा यूज होता है जीन्स, क्योंकि आप एक पैर पहन के थोड़ी निकल जाओगे, दोनों पैर तो पहनोगे, और दोनों पैर पहनोगे तो दोनों पैरों को जोड़ के ही तो एक बना है। दैट मीन्स जीन्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, दे आर नो मैटर क्वांटिटी में वो सिंगल है लेकिन उसमें पार्ट्स तो दो हैं, इसीलिए उनको प्लूरल में ही यूज किया जाता है। अब प्लूरल में यूज करते हैं तो जब भी कुछ वर्ड्स प्लूरल में यूज होते हैं तो उनके साथ हम प्लूरल वर्ब ही यूज करेंगे। इन सब नाउन्स के साथ आप प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, नो मैटर ये एक कमोडिटी है या एक चीज है, बट वो दो पार्ट से मिलकर बनी है। फॉर एग्जाम्पल, माई सॉक्स आर वेट, वेट मतलब गीले, मेरे मोजे गीले हैं। ना शूज, माई शूज आर न्यू, मेरे जूते न्यू हैं, तो आर यूज कर रही हूं। पास्ट टेंस में आर का वर्ब। His shades were lost, उसके गॉगल्स खो गए थे। Now have, his shades have been brought by his brother, ये शेड्स उसके भाई के द्वारा लाए गए हैं। I have 3 pairs of shades, मेरे पास 3 शेड्स हैं। तो जब भी आप इन वर्ड्स को यूज करोगे, ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें आर, वर और हैव ही यूज होंगे, इज नहीं होगा, वॉज नहीं होगा, हैज नहीं होगा। क्यों? इज, वॉज और हैज सिंगुलर वर्ब है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगते हैं। इनको देख के कंफ्यूज मत होना कि नो मैटर ये एक ही चीज है, एक पैंट नहीं पैंट्स बोलते हैं, बिकॉज वो दो पैरों से जुड़कर एक चीज बनी है। ओके, आई होप दिस रूल इज क्लियर टू यू। नाउ कमिंग टू द 10th रूल,
सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स, अब याद आया कलेक्टिव नाउन्स हमने किए थे कलेक्टिव नाउन्स. कलेक्टिव नाउन मीन्स ग्रुप ऑफ समथिंग, ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ थिंग्स, इन सबको मिला के क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन. तो कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे हैं जो दिखने में तो सिंगुलर लग रहे हैं, दिखने में सिंगुलर लग रहे हैं, बट ओरिजिनली वो प्लूरल हैं और उनको प्लूरल सब्जेक्ट ही माना जाता है और उनके साथ प्लूरल वर्ब ही लिया जाता है. चेक इट आउट. जेंट्री. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड जेंट्री? बेटा जो भी वर्ड्स हम डिस्कस कर रहे हैं इनको याद रखना है, इनको अपनी लैंग्वेज में यूज करना है. मैंने पहले भी डिस्कस किया है वर्ड जेंट्री. जेंट्री मीन्स अ ग्रुप ऑफ हाई प्रोफाइल पीपल, a group of rich class people, a group of elite people. Elite means highly socialized, high profile, very rich. तो जो इन लोगों के ग्रुप को बोलते हैं वो है जेंट्री. ओके, नाउ नेक्स्ट, पहले मतलब समझ लो, आई देन यूज द वर्ड्स इन द सेंटेंस. पीपल आपको पता है, लोग, पुलिस, कैटल जानवर, पोल्ट्री, पोल्ट्री जहां पे मुर्गी और अंडे मिलते हैं, पोल्ट्री फार्म. तो पोल्ट्री मुर्गी और अंडे को दो सबको मिला के हम बोलते हैं पोल्ट्री. नाउ अंडरस्टैंड द रूल एंड पे अटेंशन. ये जितने भी वर्ड हैं, क्या इनमें एस लगा है? क्या इनमें एस लगा है? नहीं. दैट मीन्स जिस भी वर्ड में एस नहीं लगा होता वो क्या बन जाता है? सिंगुलर. और जिसमें एस लगा होता है वो प्लूरल. बट ध्यान देने वाली बात यह है, नो मैटर इसमें एस नहीं लगा पर फिर भी ये क्या है? प्लूरल हैं. ऑल दीज वर्ड्स प्लूरल सब्जेक्ट हैं. ऑल दीज वर्ड्स ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं, जैसे ये प्लूरल थे. फर्क क्या है? इनमें एस लगा है, इनमें एस नहीं लगा. फर्क क्या है? ये दो चीजों से मिलके बने हैं तो चलो प्लूरल है, पर ये तो ग्रुप है. लेकिन फिर भी इन ग्रुप में एस नहीं लगा, कलेक्टिव नाउन में एस नहीं लगा, तो भी इनको हम प्लूरल सब्जेक्ट ही मानते हैं. ये वर्ड्स याद रखना, इस पे सेंटेंस एग्जाम में जरूर आता है. नाउ इन वर्ड्स के साथ हमेशा और हमेशा ये वाले वर्ब लगेंगे, या तो आर लगेगा या वर लगेगा या हैव लगेगा, क्योंकि ये एक नहीं है, ये प्लूरल है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगता है. नाउ आई गिव यू सम एग्जांपल्स विद द यूसेज ऑफ दिस वर्ड्स. नाउ जेंट्री आर कमिंग. जेंट्री आर कमिंग मींस लोग आ रहे हैं. ओके, नाउ पोल्ट्री आर सोल्ड हियर. तो पोल्ट्री मींस एक अंडा नहीं मिलता वहां पे, वहां मुर्गी भी मिलती है, वहां अंडे भी मिलते हैं. तो दैट मींस पोल्ट्री आर सोल्ड हियर. पोल्ट्री इज सोल्ड हियर, रॉन्ग. Poultry are sold here. Now see cattle. Cattle are grazing on the field. तो एक जानवर तो नहीं है, बहुत सारे जानवर हैं, तो cattle are grazing. Now police have caught the thief. पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है. Now why have? पुलिस में बहुत सारे लोग हो गए, सब अलग अलग डेजिग्नेशन के. वहां पर पुलिस इंस्पेक्टर भी हो सकता है, वहां पर उनके डिप्टी इंस्पेक्टर भी हो सकते हैं, कमिश्नर भी हो सकते हैं. पूरी टीम है, पूरी टीम है, तो इसलिए पूरी टीम को मिला के जिनकी पोजीशन अलग अलग है इनको प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है. ओके, आई होप दिस रूल इज क्लियर. नाउ कमिंग टू द लास्ट रूल ऑन द बोर्ड. सम नाउन्स ऑल्दो दे लुक प्लूरल. अब डिफरेंस देखो, ये नाउन दे लुक सिंगुलर, ये दिखते सिंगुलर हैं बट हैं क्या? प्लूरल. अब इसका ऑपोजिट, ये दिखते प्लूरल हैं बट हैं सिंगुलर. अब क्यों प्लूरल दिखते हैं? क्योंकि हमें पता है जिस वर्ड में एस लगा है वो प्लूरल बन जाता है. तो इसकी स्पेलिंग में डिफॉल्ट एस लगा है, बाय डिफॉल्ट है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एस लगा है तो वो प्लूरल ही होंगे. नो, हर जो वर्ड है जिसमें एस लगा हो वो किसी भी नाउन का प्लूरल नहीं होता है. You have to use your common sense to analyze कि whether the word is singular or plural. तो ये सारे words no matter ये plural दिखते हैं, but in reality they are singular and they are treated as singular subject.
और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है. लेट्स चेक इट आउट. नाउ फिजिक्स, रोबोटिक्स सब्जेक्ट है ये सर. फिजिक्स, रोबोटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स. अब ये 4 वर्ड्स पहले लेते हैं. फिजिक्स, फिजिक्स पे एक सेंटेंस बनाते हैं. फिजिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. तो मैंने क्या बोला? फिजिक्स इज. अगर मैं बोलती पेन्स, पेन्स आर केप्ट देयर, बहुत सारे पेन्स वहां रखे हुए हैं. तो जिस वर्ड में एस लगा है वो प्लूरल है, वो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा. बट इस वर्ड में एस लगा है लेकिन फिर भी ये सिंगुलर है. तो फिजिक्स एक सब्जेक्ट. फिजिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. रोबोटिक्स इज इन ट्रेंड नाउ. दैट मीन्स रोबोटिक्स आजकल ट्रेंड में है. पर कितनी चीजें हैं? एक. कितना यूनिट है? एक. फिजिक्स एक यूनिट, रोबोटिक्स एक यूनिट, प्लूरल नहीं. वैसे ही इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मनी एंड मनी पॉलिसीज. तो इज, आर नहीं. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इनिंग्स? मैचेस देखते हैं आप. इनिंग्स, फर्स्ट इनिंग, सेकेंड इनिंग्स, जब भी चाहे एक भी इनिंग हो तो भी उसमें एस लगाना ही है आपको. उसका स्पेलिंग ही इनिंग्स है, इनिंग नहीं होता. दैट इज रॉन्ग. ओके, ये सिंगुलर ही है. फर्स्ट इनिंग्स वॉज इंटरेस्टिंग. अब इनिंग्स मतलब पहली इनिंग्स, बहुत सारी इनिंग्स नहीं. फर्स्ट इनिंग्स वॉज इंटरेस्टिंग, पहली इनिंग्स इंटरेस्टिंग थी. वैसे ही न्यूज. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द न्यूज? या व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ न्यूज? पता है किसी को? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ. न्यूज का फुल फॉर्म है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ. नाउ गेट मी द फुल फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर का रिपोर्ट पता है? न्यूज़पेपर का फुल फॉर्म, न्यूज का नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, और पेपर प्रेजेंट एंड पास्ट इन रिपोर्ट, एनक्लोज रिपोर्ट. दैट मीन्स न्यूज़पेपर में आपको पास्ट और प्रेजेंट की पूरी रिपोर्ट मिलेगी. दैट इज व्हाई उसको बोला जाता है न्यूज़पेपर. ओके, नाउ जेनेटिक्स. ना न्यूज पे पहले सेंटेंस बना लेते हैं. न्यूज, न्यूज नो मैटर न्यूज में एस लगा है, बट ये प्लूरल वाला एस नहीं है, हमने भी डिस्कस किया. ये साउथ के लिए एस है. नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ. तो न्यूज के साथ हमेशा इज, वॉज और हैज ही लगेगा. न्यूज इज टेलीकास्टेड, द न्यूज इज फेक, द न्यूज इज ट्रू, द न्यूज इज रियल, द न्यूज वॉज शॉकिंग. तो जब भी ये सारे वर्ड्स यूज होंगे, इनके साथ हमेशा और हमेशा या तो इज लगेगा, या वॉज लगेगा, या हैज लगेगा. ओके, ये सारे वर्ड्स सिंगुलर हैं, ये सारे वर्ड्स प्लूरल हैं, और ये सारे वर्ड्स प्लूरल हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द 3 रूल्स. नाउ आई मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ रूल्स. नाउ स्टूडेंट्स, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टू बी अंडरस्टूड, और बहुत इंटरेस्टिंग है. ध्यान देकर समझो और उस चीज को जस्ट अंडरस्टैंड द लॉजिक. रटने वाली बात नहीं है, समझो बात को. Now let's check it out. Following nouns are used in their singular forms. हमने अभी कुछ nouns देखे जो प्लूरल में यूज होते हैं, कुछ सिंगुलर में यूज होते हैं. बट these nouns ये हमेशा और हमेशा सिंगुलर में ही यूज करते हैं. आप बोलते समय कई बार इसमें एस लगा देते हो, बट कभी भी इन वर्ड में एस नहीं लगता है. ध्यान देना इन चीज को. एडवाइस, एडवाइस मीन्स सलाह. अब किसी ने आपको एक सलाह दी तो भी एडवाइस, बहुत सारी सलाह दी, सलाहें नहीं, बहुत सारी सलाह दी तो भी एडवाइस. वी डोंट यूज एडवाइसेस, वो रॉन्ग वर्ड होता है. नाउन के फॉर्म में जब भी एडवाइस यूज होता है वो सिंगुलर में ही यूज होता है. नाउ नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन. एक जानकारी या बहुत सारी जानकारी, हमेशा और हमेशा सिंगुलर फॉर्म में. ना लगेज, लगेज मीन्स आपका सामान. चाहे आपके पास एक ब्रीफकेस है, एक सूटकेस है, या 4 सूटकेस हैं, तब भी आप उसको लगेज ही बोलोगे, लगेजेस नहीं. नेक्स्ट है सीनरी. ना सीनरी, द सीन, साइट, नजारा. तो चाहे एक सीन है, चाहे बहुत सारे सीन हैं, यू विल ऑलवेज यूज सीनरी इन द सिंगुलर फॉर्म. नेक्स्ट इज वेकेशन. वेकेशन इज नेवर यूज्ड इन प्लूरल. चाहे एक दिन की छुट्टी, चाहे 200 दिन की छुट्टी, दे आर ऑलवेज ट्रीटेड एज वेकेशन. वेकेशंस नहीं. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज
employment, employments नहीं होता. It is always used in their singular form, that is employment. Next is furniture. चाहे फर्नीचर में एक कुर्सी या पूरा फर्नीचर, बहुत सारी कुर्सियां, लेकिन फिर भी फर्नीचर इज द राइट वर्ड, फर्नीचर्स नहीं. नेक्स्ट बैगेज. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बैगेज? बैगेज मीन्स बोरिया बिस्तर. बोरिया बिस्तरे नहीं, बोरिया बिस्तर. पैक योर बैग एंड बैगेज, अपना बोरिया बिस्तर बांधो एंड गेट आउट. तो बैगेज मीन्स बोरिया बिस्तर, बिस्तरे नहीं. नाउ नेक्स्ट ट्रबल. एक प्रॉब्लम तो भी ट्रबल, बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो भी ट्रबल. ओके. नाउ स्टेशनरी. व्हाट डू यू मीन बाय स्टेशनरी? पेन, पेंसिल, बुक, नोटबुक, ऑल टुगेदर दे आर नोन एज स्टेशनरी. नाउ स्टेशनरी की एक और आप लोगों को स्पेलिंग अगर कंफ्यूजन होता है, नाउ सी द डिफरेंस. हियर इट इज ए, हियर इट इज ई. स्टेशनरी में जब ए यूज हो रहा है दैट मीन्स स्टेबल, स्थिर, बिना मूवमेंट के, that is ARY. When I am using ERY, that means pen, pencil, book, paper, ruler, compass, सबको मिला के stationery. तो stationaries नहीं, stationery. And check out the spelling ERY and ARY. ARY means stable, स्थिर, without any movement. Okay. Now next है अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन आपको पता है, जिनको आप फिंगर्स पे नहीं गिन सकते, 1 2 3 4 करके नहीं गिन सकते, वो अनकाउंटेबल्स नाउन कहलाते हैं. और ये हमेशा और हमेशा सिंगुलर में ही यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल शुगर, राइस, आप इनके दाने नहीं गिनते हो. यू डोंट मेजर द ग्रेन्स ऑफ राइस और शुगर और सॉल्ट. यू टेक अ स्पून फुल ऑफ शुगर, अ स्पून फुल ऑफ सॉल्ट, बट आप उनके क्रिस्टल्स नहीं गिनते हो. नाउ व्हीट. अब चाहे ये अनकाउंटेबल नाउन हो चाहे ये नाउन्स हो, इनके साथ हमेशा या तो इज लगेगा या वॉज लगेगा या हैज लगेगा, बिकॉज दे आर सिंगुलर नाउन्स. अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड एज देयर सिंगुलर नाउन्स, तभी उनके साथ या तो इज लगता है या वॉज लगता है या हैज लगता है. नाउ लेट्स चेक आउट सम ऑफ द एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दीज रूल्स. नाउ माय लगेज और लगेजेस, इज या आर मिसिंग. अब लगेज, जैसा मैंने आपको बताया, हमेशा और हमेशा, नो मैटर, आपके ट्रैवलिंग के टाइम पे आपके पास 10 सूटकेस हैं, फिर भी इट विल बी ट्रीटेड एज लगेज. सूटकेसेस बट लगेज. सूटकेसेस को आप कर सकते हो प्लूरल में, बट लगेज मान के वो एक ही सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, तो इट विल बी लगेज. और जब यहाँ लगेज है, सी लगेज नाउन सिंगुलर में यूज होता है, इसके साथ हमेशा इज लगता है, दैट इज व्हाई इज. तो माय लगेज इज मिसिंग, मेरा सामान खो गया है. सामानों नहीं, सामान. अब सामान में बहुत सारी चीजें होंगी, बट स्टिल कलेक्टिवली उसको हम लगेज ही बोलेंगे. नेक्स्ट, द फर्नीचर और फर्नीचर्स. फर्नीचर आई टोल्ड यू इज नेवर यूज्ड इन प्लूरल, तो द करेक्ट वर्ड इज फर्नीचर. अब फर्नीचर है तो इज लगेगा कि आर लगेगा? इज. तो माय फर्नीचर इज इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना. नाउ नेक्स्ट, he is facing a lot of trouble or troubles. Trouble means मुश्किल, तकलीफ. तो बहुत तकलीफ झेल रहा है, तकलीफों को झेल रहा है, बहुत तकलीफ झेल रहा है, तो ट्रबल. ट्रबल्स नहीं. ट्रबल इज ऑलवेज यूज्ड इन देयर सिंगुलर फॉर्म. नेक्स्ट है, he ate rice or rices in the breakfast. उसने नाश्ते में चावल खाए, चावलों नहीं, तो चावल खाए, तो दैट इज राइस. नेक्स्ट, the sceneries or scenery. I told you scenery is never used in plural. चाहे बहुत सारे scenes हैं, फिर भी collectively that will be known as scenery. Sceneries नहीं. So the correct option is scenery. अब जब ये scenery है, singular form है, तो इसके साथ singular verb लगेगा, that means was. Okay. Now the last, he gave me some information or informations. उसने मुझे कुछ जानकारी दी या कुछ जानकारियां दी. जानकारी आप जब बोल रहे हो हिंदी में तो ही आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, जानकारियां नहीं, कुछ जानकारी दी, तो इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशंस नहीं. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड these words and the usage of these words. Now in the next video we will move to some other
rules and some other examples. Till then, stay tuned. Thank you.